प्रिंसिपल्स ऑफ डाइट थेरेपी एंड थेरेप्यूटिक न्यूट्रिशन, ये हमारा टॉपिक है जिसको हमने लास्ट वीक भी आप लोगों के साथ स्टार्ट किया था। और up till now we have covered the background information and some aspects related to the food acceptance, especially in illness and how illness affects the nutrition. Afterwards we have discussed nutritional assessment in clinical setting and especially malnutrition, which is basically hospitalized acquired malnutrition. Last time we also started planning of therapeutic diets, and today's lecture will be related to this aspect of the study. So we are going to further elaborate the therapeutic modification of normal diet, either for the composition, consistency, or mode of feeding. And in this context, we also see different types of diets. Afterwards, we will discuss the tube feeding and various aspects related to tube feeding, like composition, osmolarity, types of formula used, what are the mode of feeding, what are the types of tubes, and lastly we will see the home tube feeding. Similarly, another route of feeding known as TPN, total parenteral nutrition. We will see how it is initiated and when it is required, and lastly how we can care the patients at home. नॉर्मल डाइट भाई मॉडिफाई की जाती है वेरियस पर्पसेस के लिए, और इसमें स्पेशली जो पेशेंट्स हैं ना उसकी ज़रूरियात को ज़हन में रखा जाता है, पेशेंट की नीड्स क्या हैं, ठीक है? और ये नीड्स जो हैं वो डिफरेंट तरह की हो सकती हैं। तो मे बी बाज़ दफ़ा हम डाइट को सिर्फ सॉफ्ट फॉर्म में ले जाते हैं, मैकेनिकल सॉफ्ट फॉर्म में, कि अगर पेशेंट जो है उसको डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम है या फूड के को ब्रेक डाउन करने में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। और बाज़ दफ़ा न्यूट्रिएंट्स की वजह से भी हमें डाइट्स की जो है वो मॉडिफिकेशंस करना पड़ती हैं। न्यूट्रिएंट्स को बाज़ दफ़ा इंक्रीज करते हैं, बाज़ दफ़ा उनको डिक्रीज करते हैं। फाइबर को रिस्ट्रिक्ट करना है तो रिस्ट्रिक्टेड फाइबर डाइट्स आ जाएंगी, फाइबर को आप ऐड करना चाहते हैं हाई फाइबर डाइट्स होंगी। बाज़ दफ़ा पेशेंट्स की जो है वो इंटरवल्स ऑफ फीडिंग को मॉडिफाई किया जाता है। लेट्स के अगर कोई डायबिटिक है तो हम उसको सजेस्ट करते हैं कि आप नंबर ऑफ फीडिंग जो है ना वो इंक्रीज कर लें। तो फूड इस तरीके से आप लें कि आपका जो इंसुलिन है बॉडी के अंदर, जो उसकी प्रोडक्शन है वो फूड के हिसाब से उसको टेकअप कर सके। नॉर्मल डाइट may be modified for the change in consistency. Sometimes we modify intervals of feeding, and we also increase or decrease the energy content. And other than energy content, we also modify diets for the nutrients. Either we increase or decrease. For example, high protein diet, low protein diets, high iron diets, high calcium diets, low sodium diet. So such type of modifications are done as per need of the patient. Increase or decrease of the dietary fiber content. अब ये जितनी भी मॉडिफिकेशंस यहाँ पे मेंशन की गई हैं, बेसिकली ये नॉर्मल डाइट की मॉडिफिकेशन है। ये चीज़ आप जरूर ज़हन में रखिएगा कि जो फूड ग्रुप्स जो हैं वो हम नॉर्मल पेशेंट इंडिविजुअल को सजेस्ट करते हैं, उन्हीं फूड ग्रुप्स को हमने डाइट प्लान के अंदर रखना है और उनकी मॉडिफिकेशन करनी है एज पर नीड ऑफ द पेशेंट। Type of modification relates to the condition and need of the individual concerned. The selection of food is made on the same principle as the normal diet using the daily food guide. So let's start first from the mechanical soft diet. This is basically soft diet and we also call it mechanical soft diet. इसमें reason क्या है कि इसको हम basically जब से ये mechanization आई है तो जो आपको domestic grinder जो इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं उनके थ्रू भी हम डाइट को जो है वो सॉफ्ट फॉर्म में लेके आ सकते हैं। और पर्पस क्या है कि जो इंडिविजुअल जिसका
ओरल इनटेक जो है वो किसी वजह से डिस्टर्ब हो गया है, माइट भी उसके टीथ नहीं है या उसके टीथ जो है वो प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं, तो बकल कैविटी में कोई इशू है, तो फिर उस वक्त इसकी जरूरत पड़ेगी। और एक टीथ का इशू किन के साथ हो सकता है? इन्फेंट्स के साथ, उनके दांत अभी नहीं आए भाई, और ओल्ड एज पर्सन के साथ उनके दांत या तो निकल गए हैं या उनके साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम एसोसिएटेड है। So only change is made in the consistency of foods served. So there is no restriction regarding the food selection. Food selection will be based on daily food diet. This diet is sometimes also described as a mechanically soft diet. This is basically a step between the full liquid and the normal diet. अब transitional phase कह लें, एक individual है, उसको मे बी वो एक सर्जिकल प्रोसीजर से गुजरा है और उसको हमने क्लियर लिक्विड से, मे बी बाज दफा हो सकता है कि इंट्रावेनस उसकी फीडिंग करनी पड़े, टीपीएन के थ्रू उसको लेके चलना पड़े, और उसके बाद फिर उसको हम ग्रेजुअली फूड की कंसिस्टेंसी फूड की तरफ लेके आएंगे और फिर फूड की कंसिस्टेंसी को चेंज करते हुए हम उसको रेगुलर डाइट पे शिफ्ट करेंगे। तो फुल लिक्विड डाइट है, इसमें क्लियर लिक्विड डाइट भी आती है भाई, इसकी इससे पहले वाली फेज कह लें, और इसी तरह फिर हम दरमियान में ये सॉफ्ट डाइट की बात करेंगे और सॉफ्ट डाइट के बाद फिर नॉर्मल डाइट आ जाएगी। सो इट इज अ स्टेप बिटवीन लिक्विड एंड normal diet, and it is served to the person suffering from acute infections. Acute means जो कि बड़ा शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए लेकिन बड़ा सीवियर किस्म का इन्फेक्शन होता है, एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंसेस, यानी अगर उसकी टॉलरेंस नहीं है कि जीआईटी सिस्टम जो है वो नॉर्मल डाइट को टॉलरेट नहीं कर रहा, जस्ट लाइक जैसे हमें डायरिया हो जाए तो फिर हम पहले सॉफ्ट डाइट की तरफ, आप चाय के साथ रस्क लेना शुरू कर देते हैं, आप खिचड़ी या जो है ना वो सॉफ्ट टाइप के जो राइस हैं उनको आप यूज करते हैं, आप दलिया खाते हैं। तो इस तरह की चीजें जो है ना, ये मॉडिफिकेशन हम क्यों कर रहे होते हैं कि हमारे जो जीआईटी सिस्टम है उसकी टॉलरेंस जो है वो बेहतर हो जाए। वंस इट्स ओके देन यू कैन शिफ्ट टुवर्ड्स द नॉर्मल डाइट। Sometimes it is given to the persons recovering from the surgery. इसमें भी भाई मकसद वही है, डिपेंड करता है कि सर्जरी किस एरिया की है, उस एरिया को जो है ना हम रिलीफ प्रोवाइड करना चाहते हैं, और उस हिसाब से फिर बॉडी के ऊपर स्ट्रेस कम से कम डालने के लिए डाइट की मॉडिफिकेशन सिर्फ इस तरीके से की जाए कि उसको सॉफ्ट कर लिया जाए। Diet consists of simple soft foods which are easy to chew and easy to digest. तो इसमें ऐसी फूड्स हम सिलेक्ट करेंगे कि जिनको च्यू करना जो है वो इजी है, और ना सिर्फ च्यू करना इजी है बल्कि उनको बॉडी डाइजेस्ट भी इजीली कर सके। और स्पेशली जो फाइब्रस पार्ट है, हार्श फाइबर्स, फैटी एंड हाईली स्पाइस्ड फूड्स आर अवॉइडेड। इसी तरह प्रोटीन की अगर हम बात करें, प्रोटीन सोर्स की, तो मीट इज वन ऑफ द गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, लेकिन मीट में अगर आप कनेक्टिव टिश्यूज ऐड कर लेते हैं, और कनेक्टिव टिश्यूज हैं वो कंपैरेटिवली हार्ड होते हैं, तो वो भी डाइजेस्ट करना भी प्रॉब्लमेटिक होंगे। ठीक है, तो अल्टीमेटली च्यू करना भी प्रॉब्लमेटिक है और डाइजेस्ट करना भी प्रॉब्लम है। तो फिर हम सिलेक्शन ऑफ फूड में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन इस सेंस में करेंगे कि या तो फिर हम उनको जो कनेक्टिव टिश्यूज हैं वो वाला मीट सेलेक्ट नहीं करेंगे, या फिर उसके हिसाब से बाज दफा ट्रीटमेंट्स करना पड़ती हैं। आप प्रोटीएजेस यूज करके भी मीट की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हो, या उसकी कुकिंग जो है फिर आपको जरा स्वीयर किस्म की करनी पड़ेगी ताकि उनको सॉफ्ट किया जा सके। न्यूट्रिशनली एडिक्वेट है भाई ये जो सॉफ्ट डाइट जिसकी हम बात कर रहे हैं, क्योंकि जस्ट वी आर चेंजिंग दी टेक्सचर। ठीक है, इसमें न्यूट्रिएंट्स हम निकाल नहीं रहे, किसी चीज को हम कम ज्यादा नहीं कर रहे, तो हम कह सकते हैं कि न्यूट्रिशनली इट इज एडिक्वेट। हाँ, जब आप लिक्विड डाइट की तरफ जाते हैं, क्लियर लिक्विड डाइट की तरफ जाते हैं, तो मे भी फिर उसमें से जो चीजें हम निकाल देंगे ना, तो उसी हिसाब से उनकी डेफिशिएंसीज होने के चांसेस बढ़ते जाते हैं। शर्त ये है कि इसको फूड डाइट के हिसाब से प्लान किया जाए, यानी सारे फूड ग्रुप्स जो हैं उनको ड्यू वेटेज जो है वो दिया जाए। अब यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे, ऑलमोस्ट सीरियल, डेयरी, मीट, ये वही सारे ग्रुप्स आएंगे, लेकिन आप देखेंगे कि हम उनको कैसे सॉफ्ट साइड पे लेके जाते हैं।
तो राइस जो है उसमें भी सॉफ्ट कुक्ड राइस की बात की जा रही है, सॉफ्ट चपाती की बात की जा रही है। और अगर तो फर्ज किया आप प्लेन राइस बनाते हैं, बॉइल्ड राइस बनाते हैं, तो वो ज़्यादा सॉफ्ट होंगे। और अगर आप इनके अंदर कोई स्पाइसेस ले आते हैं या इनके अंदर ऑयल का कंटेंट जब आप ज़्यादा ऐड कर देते हैं या मीट ऐड कर देते हैं, तो फिर वही राइस जो है ना वो हार्ड की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे। सॉफ्ट चपाती और ब्रेड तकरीबन 6 सर्विंग, जिस तरह नॉर्मली 6 से ज़्यादा सर्विंग्स जो है वो सजेस्ट की जाती हैं डिपेंडिंग अपॉन द इंडिविजुअल। बिल्कुल वही रिकमेंडेशंस हैं। मिल्क या इसके रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं, कर्ड, योगर्ट, दही, बटर मिल्क, लस्सी जिसको कहते हैं, पनीर, सॉफ्ट चीज़, इनकी भी 2 से 3 सर्विंग्स हैं। दाल जो है अभी हो सकती हैं लेकिन वेल कुक्ड होनी चाहिए, और इसमें भी 2 से 3 सर्विंग्स इनकी ली जा सकती हैं। एग्स ज़रूर यूज़ करने चाहिए, लेकिन इसमें भी अगर हम इसको फ्राई करके यूज़ करेंगे तो फिर वो हार्ड फॉर्म में शिफ्ट हो जाएगा, सॉफ्ट का एस्पेक्ट जो है वो उसमें लोअर हो जाएगा। एग्स पाउच्ड, ये आपको मैंने विजुअलाइज भी यहाँ पे करवा दिया है, जैसे आप हाफ बॉइल्ड टाइप एग्स होते हैं, बॉइल्ड हो सकता है, ग्राउंड मीट, फिश, पोल्ट्री, 2 to 3 servings. Similarly, in case of vegetables and fruits, some vegetables and fruits, they are naturally more tender and soft, especially green leafy vegetables. You can cook and strain, and similarly citrus fruit or juices or mango, these can be already soft in nature. और जो इनकी निस्बत आप समझते हैं ना, जो फ्रूट्स ऐसे हैं जिनके ऊपर फाइबर का पोर्शन ज्यादा होता है, पील होता है, तो उनका पील वगैरह रिमूव करके, स्किन रिमूव करके, या सीड्स अगर पाए जाते हैं तो उनको रिमूव कर लिया जाता है। इसी तरह वेजिटेबल्स हैं तो उनको चॉपिंग करके उनका साइज रिड्यूस किया जा सकता है। टेंडर, चॉप्ड एंड कुक्ड वेजिटेबल्स जो हैं, तो जो ऑलरेडी सॉफ्ट फॉर्म में लीफी वेजिटेबल्स हैं स्पेशली, तो उनको आप सिंपली स्टीम कर सकते हैं, स्ट्रेन कर सकते हैं। और ऐसे फ्रूट्स जो कि कह लें कि जिनके अंदर वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है, पल्पी पार्ट जो वो कम होता है, फाइब्रस पार्ट कम है, तो उनको आप एज सच यूज़ कर सकते हैं। बाकी को जो है ना फिर वो मॉडिफिकेशन आप करें। वेजिटेबल्स को आप एटलीस्ट सिलेक्शन में देखें कि टेंडर होनी चाहिए, चॉप्ड होनी चाहिए, और फिर उनको कुक करके सॉफ्ट किया जा सकता है। कुछ फूड्स ऐसी हैं कि जिनको आप एनर्जी कंटेंट को कम ज़्यादा करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल 2000 किलो कैलोरीज आपने एनर्जी एक मेन्यू प्लान बनाया है, तो आपको मज़ीद 200 से 300 कैलोरीज एनर्जी चाहिए। बड़ा सिंपल प्रोसेस है कि आप चंद ग्राम जो है वो शुगर ऐड कर लें, और फॉर एग्जांपल 30 ग्राम मीन्स मल्टीप्लाई बाय 4, यू विल हैव 120 कैलोरीज एडिशनल। और इसी तरह अगर आप फैट की बात करें, तो वो भी आप चंद ग्राम फैट लेके उसको अगर 9 से मल्टीप्लाई आप करेंगे तो प्योर फॉर्म में आपको कैलोरीज वहां से मिल जाएंगी। सो वी कैन ऐड बटर, सूप, सॉफ्ट डिजर्ट्स, and more of the above foods can be included in to meet the nutritional needs. More of the foods means के क्वांटिटी जो है ना वो आप उनकी ज्यादा कर सकते हैं। जितने फूड ग्रुप्स का हमने जिक्र किया है, उनकी नंबर ऑफ सर्विंग्स अगर आप थोड़ी थोड़ी इंक्रीज कर लेते हैं, देन यू कैन गेट food or menu with higher energy content. इसी तरह कुछ फूड्स ऐसी हैं भाई जिनको कहा गया है कि भाई इनको जरा अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। और इसकी रीजन क्या हो सकती है कि ये या तो डाइट का जो सॉफ्ट एस्पेक्ट है उसको कम करती हैं, या इसमें से कुछ चीज़ें ऐसी होंगी कि जो इरिटेंट का काम करती हैं, स्टिमुलेंट का काम करती हैं, फाइबर कंटेंट उनके अंदर ज्यादा होता है, गैस प्रोडक्शन करती हैं। तो इस तरह की चीजें जो है ना उनको जो बाउल मूवमेंट को स्पेशली डिस्टर्ब करने वाली फूड्स हैं, लाइक लेग्यूम्स, और इसमें कौन सी बात की जा रही है, होल लेग्यूम्स, एग्स। और उसमें मैंने पहले भी जिक्र किया था, नॉर्मल एग्स जो है वो बॉइल्ड है, या जो हमने बाकी इसका हाफ बॉइल्ड टाइप बात की है तो वो ओके है, लेकिन फ्राइड वेरिएंट इसका जो है वो डिस्करेज किया जाता है। मीट में भी टफ और सॉल्टेड, ठीक है। और स्पेशली टफ क्यों था कि उसमें कनेक्टिव टिश्यूज ज्यादा होंगे। स्मोक्ड फिश एंड मीट, ये भी बारबेक्यू वाली आइटम्स हैं भी, इनको भी डिस्करेज किया जा रहा है।
vegetables and fruits especially raw because they will be hard in texture, लेकिन इनको अगर कुक कर लिया जाए, बेक कर लिया जाए तो ये सॉफ्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ब्रेड एंड सीरियल्स, इसमें भी कोर्स जो कंपोनेंट्स हैं और स्पेशली ब्रांड पोर्शन जिनके साथ शामिल है, होल ग्रेन प्रेपरेशन डेफिनेटली ये जो है ना फूड को टफ वाली साइड पे लेके जाएंगे। सूप्स इसमें भी फैटी और हाईली सीजनड जो है फैट्स, इसमें फ्राइड फूड्स और पोटैटो चिप्स इसकी एग्जांपल है। और मिसलिनियस आइटम्स में वही चीजें हैं जो कि स्पाइसेस के रिलेटेड हैं, पिकल है, नट्स हैं। मेरा ख्याल है अब आपको इसकी काफी अच्छी तरह अंडरस्टैंडिंग होगी कि बेसिकली ये सारी नॉर्मल फूड्स ही हैं, नॉर्मल फूड ग्रुप से बिलोंग करती हैं, लेकिन इनका जो एस्पेक्ट जो इनको टफ करता है, हार्ट की फॉर्म में ले जाता है, उसको हमने मॉडिफाई करना है। फूड अलाउंसेस की अगर बात की जाए तो ऑलमोस्ट वही अलाउंसेस हैं इसमें जो नॉर्मल फूड डाइट पिरामिड के अंदर जो सजेस्ट किए जाते हैं। तो सीरियल्स हैं 6 to 12 सर्विंग्स की बात हो रही है। इसी तरह ये मिल्क, मीट, एग, दालें, ये जो भी प्रोटीनियस फूड्स हैं, इनको भी आप देख रहे हैं यहाँ पे इनकी रिस्पेक्टिव सर्विंग्स जो है वो लिखी गई हैं। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स 3 to 4 सर्विंग्स इनकी यूज की जा सकती हैं। और शुगर, फैट्स एंड ऑयल्स, इनको स्पेशली एनर्जी कंटेंट इंक्रीज करने के लिए जो है वो यूज करना चाहिए। अदरवाइज ये एडेड कंपोनेंट वाली फूड्स हैं, जैसे नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए अच्छी नहीं है, इसी तरह पेशेंट के लिए भी अच्छी नहीं हो सकती। नट्स जो है वो जब बंदा नॉर्मल फेज में आ जाए तो फिर उसको नट्स भी दिए जा सकते हैं। अब है तो ये भी सॉफ्ट फाइबर डाइट है, लेकिन इसमें एक चीज और इन्होंने मॉडिफाई की है कि लो फाइबर का जिक्र किया है। ठीक है, तो वही आइटम्स हैं, सिर्फ उनका जो फाइबर कंटेंट है वो लोअर साइड पे चला जाएगा। तो मतलब कि अगर आपने ब्रेड यूज करनी है तो वो रिफाइंड फ्लावर वाली जो है वो, उसको हम कह सकते हैं हाई फाइबर वाला एलिमेंट आप ना यूज करें इसके अंदर। फ्रूट्स हैं तो उनको जूसेस की फॉर्म में यूज किया जा सकता है। पील और फाइब्रस पार्ट जो है उसको इसमें हम अवॉइड करेंगे। ठीक है, बाकी भी चीजें यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर दाल का जिक्र है तो दाल भी विदाउट पील जो उसका हो सकता है, जो ब्रांड पोर्शन हो सकता है, या उसको आप रिमूव कर दें। तो ब्रेड्स अगर 180 ग्राम इसकी अमाउंट डेली ली जाती है तो इट कैन कंट्रीब्यूट फॉर 50 कैलोरीज। और ब्रेड के अंदर चूंकि प्रोटीन भी शामिल है, व्हीट से बनी है, तो इसमें तकरीबन 14 ग्राम के करीब प्रोटीन भी इसमें से मिलेगी। तो फर्क सिर्फ ये है कि जो भी सीरियल यूज करना है वो रिफाइंड फॉर्म में यूज करना है। दूध है भाई, दालें हैं, अंडा, गोश्त, इस तरह की चीजें, इसमें भी स्पेशली मिल्क, होल काउस मिल्क जिसमें फैट, प्रोटीन और शुगर इंटैक्ट फॉर्म में है, तो ऑलमोस्ट 1 लीटर सजेस्ट किया गया है, 670 कैलोरीज देता है। लेकिन अगर इसी का मजीद हम प्रोटीन कंटेंट इंक्रीज करना चाहें तो वी कैन ऐड स्किम मिल्क पाउडर। SMP स्टैंड्स फॉर स्किम मिल्क पाउडर। ठीक है, तो जो कि 50 ग्राम ऐड करके आप 180 कैलोरीज ले सकते हैं और 19 ग्राम के करीब जब आप इसमें से प्रोटीन ड्राइव कर सकते हैं। अंडे जो हैं वो 2 लिखे गए हैं। एक अंडा तकरीबन आपको 6 साढ़े 6 के करीब जो है वो प्रोटीन दे देता है, और वेट इसका जो है वो 50-60 से जो है वो स्टार्ट हो जाता है। ऑलमोस्ट 2 एग्स जो है वो आपको 170 कैलोरीज और 13 ग्राम प्रोटीन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो बाकी चीजें भाई आप देख लीजिएगा। टोटल में अगर हम जाएं तो वी हैव टोटल 2000 कैलोरीज एंड 99 ग्राम प्रोटीन, which is actually very good. You can see it is also fulfilling the calorie requirements as well as the protein requirements. अब इसमें मजीद अगर किसी की जरूरत है, बाज दफा होता है कि पेशेंट को कह लेंगे जब वो बीमार है तो उसकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाती हैं, और उस हिसाब से फिर एनर्जी कंटेंट को भी ज्यादा किया जा सकता है। जैसे फैट्स एंड ऑयल्स, इनको अगर आप यूज करें तो जस्ट you need 2 tablespoons of fats and oils, which is equal to about 20 gram, but you can get 180 calories and there is no protein. And similarly in case of sugar there will be no protein, but only we are getting the
calories. So we can add 20 gram fat and 30 gram sugar to get additional 300 calories. जी, उसी के भी हम कंटिन्यूटी चल रही है अभी हमारी कि जो सॉफ्ट डाइट है इसको हम मैकेनिकली सॉफ्ट डाइट इसलिए कहते हैं कि हम इसमें टेक्सचर को मॉडिफाई करते हैं और बाज़ दफ़ा इसको डेंटल सॉफ्ट डाइट का भी नाम दिया जाता है। अब डेंटल से आपको रिफ्लेक्ट हो रहा होगा कि ये जो उसका बकल कैविटी के रिलेटेड जो है वो इश्यूज हैं। बाज़ दफ़ा डेंचर्स जो होती है ना उसकी इल फिटिंग हो जाती है ना, दांत किसी ने सारे निकलवा दिए हैं और फिर आर्टिफिशियल दांत उसने अपर और लोअर जा पे लगा ली हैं, लेकिन उनकी फिटिंग प्रॉपर नहीं हुई तो वो भी अल्टीमेटली उस बंदे की खाना पीना जो है वो डिस्टर्ब होता है। तो उस अरसे के लिए उसको सॉफ्ट डाइट दी जा सकती है जिसको हम मैकेनिकल सॉफ्ट डाइट भी कह रहे हैं और डेंटल सॉफ्ट डाइट का नाम भी दे रहे हैं। प्योरिट डाइट जो है ये सॉफ्ट से भी कह लें कि थोड़ा सा एडवांस वेरिएंट हो जाएगा कि इसमें हम एक तो अमूमन सॉफ्ट फूड्स यूज करते हैं और दूसरा उनको मजीद सॉफन कर लिया जाता है बाय यूजिंग सम कुकिंग मेथड्स। सो दीज आर स्मूथ सॉफ्ट एंड नीड हार्डली एनी च्यूइंग। तो ऊपर वाली फेज थी जिसको हम सॉफ्ट डाइट कह रहे हैं उसमें मे बी आपको जो है वो किसी हद तक च्यू भी करना पड़े। प्योरी डाइट के अंदर च्यूई वाला एलिमेंट जो है वो निकल जाता है। So these are good for patients who have difficulty in swallowing. All foods except those that are already soft or smooth are blended or pureed in a mixer or blender. Liquids are added to get the consistency needed by the patient, and to increase the calories, fat or sugars are added. ऑलमोस्ट वही चीजें हमने एक मेन्यू के साथ तीन चीजों को डिस्कस कर लिया है कि फैट और शुगर को हम सिर्फ इसलिए ऐड करेंगे कि हम पैलेटेबिलिटी भी नो डाउट इंक्रीज हो जाती है, लेकिन इसके साथ साथ कैलोरीज इंक्रीज करना मेन पर्पज है। सॉफ्ट फाइबर रिस्ट्रिक्टेड डाइट, ये है सॉफ्ट है लेकिन अब पहले हमने लो फाइबर का जिक्र किया था, अब क्या है फाइबर रिस्ट्रिक्टेड जिसके अंदर फाइबर ना हो। तो फाइबर बेसिकली क्या है, ये मोस्टली ये इनडाइजेस्टिबल कार्बोहाइड्रेट्स पे कंसिस्ट करता है। इनडाइजेस्टिबल क्या कहते हैं, डाइजेस्टिबल कौन से जो फौरन आपको डाइजेस्ट होकर एनर्जी दे देते हैं। तो इनडाइजेस्टिबल वो है जो हमारी बॉडी के एंजाइम सिस्टम जो है वो हैंडल नहीं कर पाते, अल्टीमेटली वी आर अनएबल टू गेट एनी सॉर्ट ऑफ एनर्जी फ्रॉम देम। दीज आर मोस्टली मेड अप ऑफ सेल वॉल ऑफ प्लांट्स, और सेल वॉल ऑफ प्लांट से जो हमें इनडाइजेस्टिबल फाइबर्स मिलते हैं इसकी एग्जांपल्स में सेलुलोज है, हेमीसेलुलोज है, लिग्नन, पेक्टन सब्सटेंसेस एंड गम्स। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट आप पहले ही जब आप कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो पॉलीकार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको आप पढ़ते हैं, पॉलीसेक्राइड्स को आप पढ़ते हैं, तो वहां पे इन चीजों को बड़ा डिटेल के साथ जो है डिस्कस किया जाता है। Amount of indigestible carbohydrates in diet can be reduced by using refined cereals and breads because fiber is mainly present in their bran portion. Immature vegetables, in case of immature vegetables, the fiber content will be less. Fruits without skin and seeds. So if we are going to peel off the fruits, so ultimately we will reduce their fiber content. And similarly, cooked vegetables and fruits, they will also have less fiber content. Mostly soluble type of fiber will leach down into the water or cooking medium. While cooking, both peptic substances and cellulose are disintegrated. They are broken down. Hence, cooked vegetables and fruits are used. To reduce indigestible carbohydrates, pureed vegetables and fruits are only the juice of vegetable and fruits is used. तो अल्टरनेट ऑप्शन आपके पास क्या हो सकते हैं कि आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का जूस यूज कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे लेटेस्ट ट्रेंड की बात की गई है। लेटेस्ट ट्रेंड जो है ना वो अब ये आ रहा है कि हमने देखा है कि पेशेंट्स जो है ना वो सॉफ्ट कुक्ड इमेच्योर वेजिटेबल्स को ज्यादा पसंद करते हैं एज कंपेयर टू प्योरिड वंस।
यानी एक्सट्रैक्ट वगैरह यूज करना वो इतना लाइक नहीं करते, ब्राउथ वगैरह लेना इतना लाइक नहीं करते। सो दे आर मोर इंटरेस्टेड इन सॉफ्ट कुक्ड इमेच्योर वेजिटेबल्स। इसी तरह अगर देखा जाए तो इसमें हम वैरायटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को यूज कर सकते हैं, और इनमें सिर्फ वही एलिमेंट है कि फाइबर वाला एलिमेंट जो उसको आप, या हार्श वाला एलिमेंट जो उसको आप इग्नोर कर दें। Apples can be peeled, pears, peaches, apricots, and banana. They can be peeled and often recommended and for such type of patients. A description of the daily food allowances and sample menu for the soft fiber restricted diet is presented in next table. We can also have appropriate adaptations as per the requirement of the individual. जरूरी नहीं कि ये जो मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करूंगा आप इसको 100% implement करें. You can modify as per the requirements of your patient. Some of the aspects that affect food acceptability include connective tissues, strong flavor and amount of stimulant present. इनको भी भाई हम इसके बाद डिस्कस करेंगे वन बाय वन, और इनका हल भी आपके साथ शेयर करेंगे. अब ये आप देख सकते हैं इसमें ना सिर्फ फूड अलाउंसेस का जिक्र कर दिया गया कि कौन कौन सी फूड्स हैं वो अलाउड हैं, बल्कि एक मेन्यू भी यहाँ पे दिया गया है, सैंपल मेन्यू. तो आप इसमें देखेंगे कि ऑलमोस्ट वही हमारी जो नॉर्मल डाइट वाले फूड ग्रुप्स हैं वो आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं. ठीक है, तो मिल्क, शुगर, एग, पोरेज, राइस, चपाती, दाल, ये सारी चीजें हैं. लेकिन लेफ्ट साइड पे आप देखें तो हर एक का जो है ना वो सॉफ्ट वर्जन जो है ना वो प्रेजेंट किया गया. जैसे सीरियल्स को क्या कहा गया, वेल कुक्ड होने चाहिए. सॉफ्ट राइस हो सकता है, चपाती है, ठीक है, इसी तरह बाकी प्रोडक्ट्स हैं. और अगर आप वेजिटेबल्स की बात करें, अगेन टेंडर, ग्रीन्स, कुक्ड एंड ब्लेंडेड, ये चारों एस्पेक्ट्स जो है ना वो उनको सॉफ्ट वर्जन की तरफ लेके जाएंगे. इसमें इसी तरह अगर आप कहते हैं जी अगर टेंडर नहीं है आपके पास अवेलेबल, सॉफ्ट वर्जन अवेलेबल नहीं है, तो फिर आप इनको कुक करके स्ट्रेन कर लें और इनकी प्योरी जो है ना उसको यूज किया जा सकता है. और इनका जो स्किन है और इनकी जो सीड्स हैं उनको रिमूव करके पेशेंट को दिया जा सकता है. इसी तरह बाकी जो शुगर्स हैं, फैट्स हैं, इनको मॉडरेशन में यूज करना चाहिए. डिजर्ट्स जो हैं वो खाए जा सकते हैं, अभी सिर्फ नट्स वगैरह उसमें कम से कम होने चाहिए और फैट का एलिमेंट कम होना चाहिए. इसी तरह जो मिसलेनियस आइटम्स हैं उसमें एडेड जो सॉल्ट है, सीजनिंग्स हैं, स्पाइसेस हैं, उनको मॉडरेशन के अंदर यूज किया जा सकता है. तो अभी तक हमने ये देखा है कि जो सॉफ्ट डाइट्स थी इनको हमने मैकेनिकली सॉफ्ट किया है. इसमें हमने सिलेक्शन ऑफ फूड इस तरीके से किया है कि वो ऑलरेडी टेंडर होनी चाहिए, और इसके साथ साथ जहाँ पे ज़रूरत पड़ी है हमने उनको कुकिंग करके, बॉयल करके, हम स्टीम करके हमने उनका जो उनको जो हार्डनेस थी उनकी उसको लोअर करने की कोशिश की है. और जहाँ पे भी पॉसिबल हो सके हमने ये सजेस्ट किया है कि भाई फैट और सीजनिंग्स और इस तरह की जो चीज़ें हैं, स्पाइसी टाइप की चीज़ें उनको इसमें कम से कम इस्तेमाल करें. तो ये डाइट जो है वो न्यूट्रिशनली एडिक्वेट होती है अगर आपने सारे फूड ग्रुप्स को जो है वो स्वैप किया है. लेकिन चूंकि इसमें जब आप नॉर्मल से सॉफ्ट की तरफ आते हैं तो एटलीस्ट इसमें डिल्यूशन जो है वो करनी पड़ती है. बाज़ चीज़ें आप इसमें ऐड करके स्टफ को डिल्यूट करते हैं ना, जैसे आप मिल्क शेक बनाना हो या कोई मैं कह रहा हूँ ना कि किसी बनाना शेक है या मैंगो शेक है, तो आप उसके अंदर मिल्क ऐड करके उसको डिल्यूट कर लेते हैं, तो न्यूट्रिएंट कंटेंट इसमें डिल्यूट हो जाएगा. तो फिर उसका हल क्या है कि इंडिविजुअल की इंटरवल जो है ना वो बिटवीन फीड्स उसको कम किया जा सकता है. ठीक है, यानी उसके नंबर ऑफ फीड्स जो है ना वो ज्यादा की जा सकती हैं ताकि उसको एटलीस्ट उसकी रिक्वायरमेंट है कैलोरीज की वो पूरी हो सके. Protein content of the food can further be increased by using the high protein options like skim milk powder we can use. Similarly, we can use soya protein isolate, soya protein concentrate, defatted soya. ये तीनों वेरिएंट्स जो है ना वो
प्रोटीन में रिच हैं, प्रोटीन कंटेंट इंक्रीज कर देते हैं। इसी तरह जब हम दूध वाली चीजें अगर यूज करते हैं, मे बी हम स्किम मिल्क पाउडर ही यूज करने जा रहे हैं, एक चीज जरूर जहन में रखनी चाहिए कि इसमें लैक्टोज जो है ना वो बढ़ेगा। लैक्टोज कंटेंट, स्पेशली जो लैक्टोज इंटॉलरेंट इंडिविजुअल्स हैं, जिनकी बॉडी में लैक्टेज एंजाइम की एक्टिविटी कम है या नहीं पाई जाती, तो उनको फिर आप स्किम मिल्क पाउडर की बजाय आप जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन सोर्सेज हैं, जैसे मैंने अर्ज किया है, सोया प्रोटीन कंसंट्रेट है, सोया प्रोटीन आइसोलेट्स हैं, उनको यूज कर सकते हैं। एनर्जी कंटेंट अगर आपने इंक्रीज करना है तो उसके लिए एनर्जी रिच सोर्सेज प्योर फार्म में जो अवेलेबल हैं, जैसे शुगर जो है वो अवेलेबल है, और शुगर का वेरिएंट यहाँ पे ग्लूकोज की फॉर्म में लिखा गया है। इसको कहते हैं जी, आप जूसेस में ऐड कर सकते हैं, मिल्क में ऐड कर सकते हैं। क्रीम, फैट जो है ना, बेसिकली बटर या ऑयल या क्रीम है, वो बेशक दूध में डाल दें, बेशक वो डेजर्ट्स के अंदर कस्टर्ड आपने बनाया है उसमें आप ऊपर क्रीम से टॉपिंग कर लें, इसी तरह दूध में आप क्रीम ऐड करके उसको अच्छी तरह मिक्स कर लें, या उसकी क्रीम उतारा ही ना, होल फैट मिल्क जो है वो फुल फैट मिल्क यूज करें। और इसी तरह जो सीरियल्स हैं उनके अंदर भी, जैसे दाल है ना आगे पकी हुई है, और दाल के अंदर अगर हम फ्राइड वर्जन उसका ले आए, दाल फ्राई जिसको हम कहते हैं, उसके अंदर अगर हम 1-2 चम्मच जो है वो बटर ऐड कर लें या ऑयल ऐड कर लें, तो उसका एनर्जी कंटेंट जो है उसको इंक्रीज किया जा सकता है। तो सिंपली इसमें आपने देखा है कि प्योर जो न्यूट्रिएंट्स हैं, चाहे वो शुगर है, ग्लूकोज है, या फैट है, या बटर है, ऑयल है, उनको यूज करके हम एनर्जी कंटेंट इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आप मिल्क का एलिमेंट ज्यादा लेके आते हैं डाइट के अंदर, तो डेफिनेटली आपकी डाइट जो है वो हाई इन कैल्शियम हो जाएगी, ठीक है। और इसी तरह फैट कंटेंट भी उसके अंदर ज्यादा होगा। डेली फूड प्लान फॉर फुल लिक्विड डाइट इज गिवन हियर। The following foods can be included in the full fluid diet. तो अब इसमें अभी भी क्लियर लिक्विड की तरफ नहीं हम गए भाई, अभी हम फ्लूइड से फुल फ्लूइड की तरफ गए हैं। तो डेफिनेटली इसमें जूसेस आएंगे, या जो दूध है जो ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। मिल्क कैन बी अराउंड 1 लीटर, एग्स कैन बी 2। इसको आप एग्स को आप कस्टर्ड बना के यूज कर सकते हैं, एग्स को आप दूध में मिक्स करके यूज कर सकते हैं। और इसी तरह एग नॉग एक डिश बताई गई है भाई, जो कि मिल्क और एग का पंच है, ठीक है। इस फॉर्म में आपको जस्ट लाइक मिल्क शेक जो है वो आपको नजर आ रहा है। दालें जो है भाई उनको वेल कुक फॉर्म में यूज किया जा सकता है। मीट जो है उसमें स्पेशली जिसको सॉफ्ट कर लिया गया है, उसमें कनेक्टिव टिश्यूज कम से कम हो, और उसको स्ट्रेन करके आप यखनी टाइप जिस तरह बनाते हैं ना, उस तरह की चीजें हो सकती हैं। सीरियल्स को भी भाई आप, चाहे वो गंदम है, बार्ले है, ओट है, उनको आप बॉयल करके, कुक करके, बॉयल करके उनका ग्रेवल टाइप मटेरियल बना सकते हैं। तो बाकी भी चीजें भी यहाँ पे लिखी गई हैं। अब सीरियल ग्रुप जो है उसमें एनर्जी के हिसाब से अगर हम बात करें तो 1/2 कप अगर आप सीरियल्स को स्ट्रेन करते हैं, कुक करते हैं, तो उसमें से आपको ऑलमोस्ट 80 कैलोरीज मिल सकती हैं, और 2 ग्राम प्रोटीन इसमें मिलेगी, ठीक है। क्योंकि प्रोटीन जो है वो जो लिक्विड वेरिएंट है उसके अंदर बहुत कम क्वांटिटीज की मूव करेगी। वैसे अगर आप सीरियल लेते हैं तो उसमें से आपको अच्छी खासी क्वांटिटी में प्रोटीन भी मिल जाती है। अब इसको पूरा करने के लिए आप प्रोटीन ग्रुप की तरफ आएंगे, और प्रोटीन में अगर आप देखें मिल्क है तो इसमें तकरीबन 1.25 किलो के करीब भाई, 1¼ लीटर। काउ मिल्क या बफेलो में मजीद फैट कंटेंट ज्यादा हो जाएगा, और इसमें से आपको तकरीबन 40 ग्राम के करीब जो है वो प्रोटीन आपको मिलेगी। अगर आप बफेलो मिल्क लेते हैं तो इसमें मे बी ये 50 ग्राम 55 ग्राम तक चली जाएगी। और इसी तरह कैलोरीज जो है ना इसमें 20 है, तो ऑलमोस्ट आप 1000 कैलोरीज तक जा सकते हैं। इसके साथ साथ दूध में से आपको कैल्शियम, विटामिन ए, बी और जितने भी फैट सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स हैं वो इसमें से मिलेंगे। काउ मिल्क है तो उसमें कैरोटीनॉइड्स भी डेफिनेटली आएंगे।
स्किम मिल्क पाउडर जो है वो 1/2 कप उसने लिखा हुआ है, तो इसमें बेसिकली क्या है कि ये चूंकि लिक्विड नहीं है, अब ये पाउडर का हम बात कर रहे हैं, तो कम क्वांटिटी भी यूज करके हम इसमें से मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स ले सकते हैं। इवन 1/4 ऑफ कप जो है उसमें से आपको 8 ग्राम के करीब प्रोटीन मिल रही है और 80 कैलोरीज के करीब आपको एनर्जी कंटेंट अवेलेबल होगा। एग्स की बात कर लेते हैं, 2 इन नंबर्स अराउंड 100 ग्राम के बराबर होंगे और एक एग जो है वो तकरीबन 6 to 6.5 ग्राम प्रोटीन देता है। तो इस हिसाब से यू कैन गेट द 12 ग्राम प्रोटीन एंड अराउंड 170 कैलोरीज। मीट में अगर बात की जाए तो अराउंड 30 ग्राम मीट served as thick broth contains about 6 ग्राम प्रोटीन एंड 75 कैलोरीज। इसी तरह ऑर्गन मीट अगर आप लेते हैं तो उसमें से आपको विटामिन्स मिनरल्स जो है वो बेहतर मिल सकते हैं। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स अगेन इनके जूसेस जो है वो यूज किए जा सकते हैं, इनकी प्योरीज जो है वो यूज की जा सकती हैं। स्पेशली सिट्रस फैमिली को आप जरूर यूज करें ताकि जो इसके अंदर विटामिन सी है एक तो वो आपको मिल सके, दूसरा ये प्रो ऑक्सीडेंट का काम भी करते हैं और इसके साथ साथ ये आयरन की एब्जॉर्प्शन जो होती है ना मील के अंदर उसको भी इन्हांस करता है। तो सिट्रस फैमिली जो है वो जरूर आपकी मील का जो है वो हिस्सा होना चाहिए। फैट्स और स्वीट्स जो है ये मॉडरेशन के अंदर यूज करनी चाहिए और जो एक्सेसिव हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो स्पेशली हमें यहाँ से पूरी करनी चाहिए। तो अराउंड 8 टीस्पून विच इज इक्वल टू अराउंड 40 ग्राम of sugar, it can contribute around 160 to 200 kilocalories. Similarly, 6 teaspoons और tablespoons की बात करेंगे तो ये 3 हो जाएंगे और 3 tablespoons of butter, ghee, oil, which are around equal to 30 gram, and 30 gram multiplied by 9, you can get around 270 calories. अब ये किन पेशेंट्स को सजेस्ट की जाती है फुल लिक्विड जो डाइट है, इसमें एक तो वही सर्जिकल जिनका प्रोसीजर होता है पोस्ट ऑपरेटिव आफ्टर द क्लियर लिक्विड डाइट फेज। तो सर्जरी के बाद सबसे पहले ऑप्शन क्या आएगा, क्लियर लिक्विड डाइट, ठीक है, या इससे पहले टीपीएन जो है वो दिया जा सकता है। क्लियर लिक्विड डाइट जो है वो कंप्रोमाइज डाइट होगी, नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट्स इसमें कम होंगे, तो इसलिए ये 1-2 दिन के बाद इंडिविजुअल को फुल लिक्विड डाइट की तरफ शिफ्ट किया जाएगा। सेकंड फेज क्या हो सकता है कि अगर कोई एक्यूट इन्फेक्शन है, किसी को गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल अपसेट है, इसी तरह पेशेंट जो उसकी च्यूएबिलिटी डिस्टर्ब है, बकल कैविटी के रिलेटेड उसको सीवियर प्रॉब्लम है, तो ये तकरीबन 4 कंडीशंस ऐसी लिखी गई हैं जिनमें फुल लिक्विड डाइट जो उसको सजेस्ट किया जा सकता है। फूड अलाउंसेस जो हैं वो एक फुल लिक्विड डाइट के वो यहाँ पे शो किए गए, इसको आपने खुद ही देख लेना। इसमें अमाउंट भी मेंशन कर दी गई है, मेन्यू भी आपके सामने दे दिया गया है। आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट हर चीज जो है ना वो आपको लिक्विड वेरिएंट में